Children, here in this video we will study about conservation of genetic resources. Means we will see that how the genetic resources are conserved. There are two methods, ex situ conservation and in situ conservation. In this entire video we will study about in situ conservation, and in the next video we will study about ex situ conservation. Let's start with in situ conservation. This strategy involves conserving the wildlife in their natural habitat, and it is done through a network of protected areas. These areas are national parks, wildlife sanctuaries, and biosphere reserve. I am repeating that in situ conservation involves conserving wildlife in their natural habitat. Now let's see that how this wildlife is conserved in their natural habitat. National parks. It is a protected area which is strictly reserved for the betterment of wildlife, and the activities like forestry, grazing of animals, and agriculture is not permitted. Remember, children, in national parks, forestry, grazing of animals, and agriculture is not permitted. Let's see some examples. Jim Corbett National Park in Uttarakhand is famous for tigers, elephants, leopards. Kaziranga National Park in Assam is famous for rhinoceros, Indian bison, and swamp deer. Here you can see Indian bison, and this one is swamp deer. Then Sundarban National Park, present in West Bengal, is famous for Bengal tigers. Then Kanha National Park in Madhya Pradesh is famous for tigers, deers, etc. Let's move to wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries are a network of protected areas. Means it is a protected area that is reserved for the conservation of wildlife, that is for plants as well as animal species. Human activities like harvesting of timber, collection of minor forest products, and private ownership rights are allowed here. Examples: Bharatpur Bird Sanctuary, present in Rajasthan, Gir Lion Sanctuary, present in Gujarat, and Kedarnath Sanctuary, present in Uttar Pradesh. Now moving on to the next one, that is a biosphere reserve. Biosphere reserve is a special category of protected area of land or coastal environment which aims at conservation of ecosystems and genetic resources contained in them. Then multiple use of land is done by designing various zones. Let's see the zones present in biosphere reserve. There are three zones: transition zone, buffer zone, and core area. You can see that in the transition zone human settlement is there. Now we are going to study the zonation in biosphere reserve in detail. Children, you can see here that this just wait, let me do it down. Okay, now you can see here that this one, the dark green part, this one is the protected area. Then here you can see this light green part is the managed use area, the second one, the second zone. Then the third, the light one, this one is the cooperation zone by transition zone. Now children, you can see that here these are denoting the settlements, means the human settlements. Then you can see the alphabets here are, we can do research in here and these two areas. Then monitoring area is this one is the monitoring area. Animals are present here, and we are going to observe, though animals can come here, but the activities in these areas in the outer two zones are restricted also. Then educational use, it can be used for educational purposes, means E you can see here, means educational use means we can do research and education related activities. Then these two areas are for sustainable use, means for restrictions are there. Sustainable means you all know that things in which we utilize any resources very carefully so that it can be saved and it can be used for future generations. Then moving on, in biosphere reserve attention is paid to gene pool and the biodiversity is significantly managed. Now let me tell you what is a gene pool. Gene pool, you can see population are made up of number of same species that interbreed. Now you know that population are made up of number of same species. So
The variation naturally occurs among the genes living in a particular population. There is a variation occurs. It can be immigration, it can be emigration, people can come, they can go, na? So the collection of the genes present in that particular area within a population, that collection of genes is called as gene pool. Here you can see that how the gene pool is represented. This is a population of a particular species, and you can see the genes along with their alleles, along with the contrasting pair of character. So all together make a gene pool of a population. Now moving to the advantages of in situ conservation. In situ conservation is a low cost, convenient method. Why low cost? Because the animals are conserved in their natural habitat there only, and it is a method by which we can protect large number of organisms. Here organisms are allowed to survive in their natural habitat. Therefore the interest of local people are also protected, means the people living around these parks, wildlife sanctuaries or biosphere reserves. Then here the gene pool is not disturbed. Why? Because some activities, restricted activities like hunting and poaching, all these things are not allowed in these types of areas. So the gene pool is not disturbed. Organisms living there are living in their natural habitat. Now here the whole ecosystem is conserved. Then coming to the disadvantages of in situ conservation, endangered habitat may be fragmented. So the area may not be large enough to ensure the survival of these species. Now children, these sometimes, because these areas may be fragmented, so because of this we may not be sure enough that the endangered species may survive there. Then genetic biodiversity may have already been fragmentally decreased, और उसके बारे में ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता ना हो और धीरे धीरे वो डाइवर्सिटी क्या होती जाए, कम होती जाए. देन कंडीशंस दैट थ्रेटन द ऑर्गेनिज्म इन द एरिया मे स्टिल प्रेजेंट, लाइक डिजीज़ और इंटरस्पेसिफिक स्पीशीज़ आर देयर. सो उसमें जैसे कंपटीशन होता है तो उसकी वजह से स्पीशीज़ थ्रेटन हो सकती हैं. एंड पोचिंग एंड इको टूरिस्ट मे सी द थ्राइविंग एरियाज एज एन अपॉर्चुनिटी एंड मे कॉज डैमेज. इलीगल वो कर सकते हैं इको टूरिज्म, और ऐसे एरियाज़ को एक अपॉर्चुनिटी समझ करके उसको डैमेज भी कर सकते हैं. तो इसलिए ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस. चलिए देखते हैं मैंने आपको क्या बताया इस वीडियो में. मैंने बताया कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करते हैं. दो मेथड्स होते हैं कंजर्वेशन के, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है इन सिटू कंजर्वेशन. इस वीडियो में आज हम इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में. तो जो इन सिटू कंजर्वेशन होता है उसमें हम वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करते हैं. कैसे कंजर्व करते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना देते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना दी, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क से. नेशनल पार्क जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो स्ट्रिक्टली इस बात पे रिजर्व करता है, मतलब केवल हमें क्या, हमारा एम है कि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और उसका बेटरमेंट करना है. अब कुछ एक्टिविटीज़ हो गई जैसे कि फॉरेस्ट्री हो गई, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया. ये इस तरह की एक्टिविटीज़ नेशनल पार्क में परमिटेड नहीं होती हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ उत्तराखंड में. वो फेमस किस लिए है? टाइगर्स के लिए, एलिफेंट्स के लिए, लेपर्ड्स के लिए. काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है वो राइनोसरस के लिए, इंडियन बाइसन के लिए, स्वैम्प डियर के लिए फेमस है. यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं इंडियन बाइसन और स्वैम्प डियर की. फिर बात करते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क की जो वेस्ट बंगाल में है, वो बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है. फिर कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वो टाइगर्स और डियर्स के लिए फेमस है. अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी एक तरह का प्रोटेक्टेड एरिया है जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए यूज़ होता है. किस तरह की वाइल्ड लाइफ? जैसे कि प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स लेना, यानी कि वुड लेना, या कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे, बहुत मेजर लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लेना. और प्राइवेट ओनरशिप राइट्स, यानी कि ऐसा हो सकता है किसी कोई प्राइवेट वहाँ ज़मीन का पार्ट हो, इस तरह से हो, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ अलाउड हैं.
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, भरतपुर बर्ड सेंचुरी हो गई, जैसे कि राजस्थान में प्रेजेंट है, गिर लायन सेंचुरी गुजरात में प्रेजेंट है, केदारनाथ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टेड एरिया की, जो है बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड है, या कोस्टल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, जहाँ कोस्टल एरियाज़ हों, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो। इसमें हमारा एम क्या है कि हमें इकोसिस्टम को कंजर्व करना है, साथ ही साथ जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज वहाँ प्रेजेंट हैं उन्हें भी कंजर्व करना है। अब लैंड का मल्टीपल यूज़ तो किया जाता है, कैसे किया जाता है, उनको जोन्स में डिवाइड करके। एक ऐसा भी जोन होगा जिसको कोई टच भी नहीं करेगा, ठीक है, कुछ ऐसा भी जोन होगा जिसमें ह्यूमन बींग्स अलाउड होंगे, वहाँ रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह के जोन्स प्रेजेंट होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। एक है हमारा ट्रांजिशन जोन, जो सबसे बाहर प्रेजेंट है, फिर मिडिल जोन हो गया, बफर जोन, और सबसे इनर जोन हो गया हमारा कोर एरिया या कोर जोन। ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन जोन्स में और बफर जोन के बॉर्डर्स वगैरह पे अलाउड होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और डिटेल देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में किस तरह की एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। देखिए, तो सबसे कोर एरिया है हमारा, वो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ये एरिया हमारा मॉनिटरिंग एरिया होता है, हम स्पीशीज़ को, जेनेटिक रिसोर्सेज को मॉनिटर करते हैं। फिर बात करते हैं हमारे बफर जोन की। बफर जोन एरिया जो होता है वो हमारा मैनेज्ड यूज़ एरिया है। इसमें हम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, रिसर्च एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसका हम सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबल यूज़ मैंने आपको बताया कि ऐसा यूज़ जो रिसोर्सेज को इस तरह से ना हार्म करे कि वो ख़त्म हो जाएं एक एक्सटेंट पर आकर के, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारा लास्ट वाला जो जोन है, जो सबसे बाहर वाला है, कोऑपरेशन जोन, तो ट्रांजिशन जोन। इसमें सेटलमेंट्स भी अलाउड हैं, आप देख सकते हैं इस दोनों जोन्स में। थोड़ा बहुत बफर में भी सेटलमेंट्स अलाउड हैं, बट मैक्सिमम जो अलाउड है, ज़्यादा सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, वो सबसे बाहर ट्रांजिशन जोन में अलाउड है। उसके बाद इस जोन में भी रिसर्च एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उसके साथ साथ सस्टेनेबल यूज़ इसका भी किया जा सकता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में मेनली अटेंशन इस बात पर दी जाती है कि हम अपने जीन पूल और बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करें। जीन पूल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए वहाँ का। अब देखिए होता क्या है, जीन पूल है क्या, देखिए पॉपुलेशन जो है वो सेम स्पीशीज़, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के मेंबर्स से बनी होती है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरली भी जीन्स में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, एक पॉपुलेशन में। अब जो कलेक्शन है जीन्स का और उनके जो वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, एलील्स जिसे हम कहते हैं एक पॉपुलेशन में, उसी को हम कहते हैं जीन पूल। अब यहाँ पर जीन पूल को समझाने के लिए देखिए, ये एक कोई पर्टिकुलर एरिया है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है, ठीक है। हर स्पीशीज़ के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और उन कैरेक्टर्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, यानी कि एलील्स होंगे। जैसे मैंने कहा कि आई कलर, तो आई कलर जो है वो एक कैरेक्टर है और आई का कलर ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ग्रे हो सकता है। तो ये सारे उसके एलीलिक फॉर्म्स हो गए। तो ये सारे फॉर्म्स, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर, ये सब मिला करके बनाता है जीन पूल। और ये जीन पूल बेटा डिस्टर्ब भी होता है, कैसे, अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाए या कोई एनिमल वहाँ से बाहर चला जाए। तो बायोडाइवर्सिटी में हमें, बायोस्फीयर रिजर्व में हमें यही ध्यान रखना है कि जो जीन पूल हो वो वहाँ पर मेंटेन रहे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, इन सिटू कंजर्वेशन के एडवांटेजेस की। एक बहुत ही लो कॉस्ट कन्वीनियंट मेथड है, केवल मॉनिटर करना है, ध्यान रखना है, एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्टेड हैं। ऑर्गेनिजम्स को अलाउ किया गया है कि वो उनके नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करें। लोकल पीपल के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनका जैसा एक लाइफस्टाइल हो जाता है तो वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। जीन पूल इसमें डिस्टर्ब नहीं होता और पूरा इकोसिस्टम कंजर्व रहता है। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एंडेंजर्ड हैबिटेट है तो वो क्या है, वो भी फ्रैगमेंटेड हो सकता है। अगर उसको जैसे मान लीजिए कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ अलाउड है, मान लीजिए वहाँ पर थोड़ा फ्रैगमेंटेशन हो जाता है, तो ये क्या होगा, वो उतना बड़ा एरिया रह नहीं जाएगा। पहले किसी एनिमल को पूरा बड़ा एरिया मिल रहा था, अब वो फ्रैगमेंटेशन हो गया तो अब वो एरिया छोटा हो गया। जब ये एरिया छोटा हो गया तो वो स्पीशीज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि वो पहले इतने बड़े से हैबिटेट में, इतने बड़े से एरिया में रह रही थी, अब उसको इतने से में रहना है, तो उससे स्पीशीज़ के सर्वाइवल पर भी दिक्कत होती है। उसके बाद जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी
थोड़ा हो सकता है कम हो रही हो धीरे धीरे, अगर वहाँ पर कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हों, कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही हो कि वो स्पीशीज़ सर्वाइव ना कर पा रही हों, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है इस तरह के एरिया में जो ऑर्गेनिज्म को थ्रेटन कर दे। क्यों? हो सकता है कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जाए या दो स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन हो जाए। फिर कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं जो पोचिंग करें वहाँ पर जाकर, या इको टूरिस्ट भी ऐसे जैसे मान लीजिए गए और कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी तो देख करके तुरंत ही वहाँ पर डैमेज कर दिया, वहाँ पर किसी एनिमल को मान लीजिए किल कर दिया, पोचिंग हो गई, या कोई प्रोडक्ट हमने हार्म कर दिया। तो ये तरह की चीज़ें जो हैं ये हो जाते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस इन सिटू कंजर्वेशन के लिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। थैंक यू।